چلیے شروعات کریں گے جموں کشمیر کی سپیڈ نیوز کے ساتھ۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے مظفر آباد میں نوجوانوں کا احتجاج، پاکستانی اور پی او کے حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، جاب ریگولرائزیشن ایکٹ کے خلاف کیا گیا احتجاج۔ مظفر آباد شہر میں نوجوانوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسے کالا قانون دیا قرار، انہوں نے اس قانون کو فوری طور پر واپس لینے کی مانگ۔ مظاہرین کا الزام، مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کیا جا رہا ہے کھلواڑ، میرٹ کو بالائے طاق رکھ کر حکومت میں بیٹھے لوگ صرف اپنے بچوں کو نوکریاں اور دیگر سہولیات کر رہے ہیں فراہم۔ بانہال کے درجنوں دیہات اور پہاڑی علاقوں میں سڑک رابطے کا ہے فقدان، سڑک رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی زندگی پریشان حال، تمام سامان لوگ اپنے کندھوں پر یا پھر خچروں کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ بانہال کے مختلف علاقوں میں مریضوں کو اسپتال پہنچانے اور بچوں کو اسکول پہنچنے میں سخت مشکلات کا ہے سامنا، بچوں کی تعلیم، طبی نظام، رابطہ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے بے حد متاثر۔ پیرا لیگل والنٹیئرز کی حکومت سے اپیل، ماہانہ اجرت میں اضافہ کرنے کی مانگ، ہائی کورٹ کے ماتحت کام انجام دے رہے ہیں، مختلف فلاحی اسکیموں کی جانکاری بھی کرتے ہیں فراہم۔ ریجنل ٹرانسپورٹ آفس 25 دنوں سے لاوارث، سابقہ آر ٹی او کی منتقلی کے بعد نئے آر ٹی او کی نہیں کی گئی ہے تقرری، 25 دنوں سے نہیں کی گئی تقرری، ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید اور گاڑیوں کی تجدید کے لیے آنے والوں کو سخت دقتوں کا کرنا پڑ رہا ہے سامنا۔ اکھنور میں جوڑیاں سے پلوانوالا کو جانے والی سڑک کو خستہ حالی سے لوگ پریشان، سڑک پر میگڈمائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف پیدل سفر کرنے والوں کو دقتوں کا سامنا بلکہ گاڑیوں کی آمدرفت بھی متاثر۔ کرگل کے ضلع صدر اسپتال کے ڈاکٹروں نے آج پولیس کی زیادتی کے خلاف کیا احتجاج، آن ڈیوٹی ڈاکٹر کے ساتھ مار پیٹ کا الزام، پولیس نے الزامات کی تردید۔ کرگل ایڈمنسٹریشن کو 25 آکسیجن کنسنٹریٹر فراہم کیے گئے، گلوبل ہمالین ایکسپیڈیشن اور پارٹنرز نے آکسیجن کنسنٹریٹر فراہم کیے۔ ڈپٹی کمشنر کرگل سنتوش سکھدیو نے فاؤنڈیشن کا ادا کیا شکریہ، کہا بروقت آکسیجن کنسنٹریٹر کی فراہمی سے ملے گی مدد۔ ضلع اسپتال بڈگام میں کووڈ گائیڈ لائنز کی اڑائی جا رہی ہیں دھجیاں، لوگ کھلے عام ایس او پیز کی کر رہے ہیں خلاف ورزی، سوشل ڈسٹینسنگ کا نہیں رکھا جا رہا قطعی کوئی خیال۔ اسپتال انتظامیہ اور دیگر متعلقین کو ایس او پیز پر عمل آوری کو یقینی بنانے کی ہے ذمہ داری، عام لوگوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ابھی کورونا کا خاتمہ نہیں ہوا ہے، کورونا کی تمام گائیڈ لائنز پر ابھی بھی عمل پیرا رہنے کی بہت ضرورت۔ جموں کشمیر میں کووڈ پازیٹیو معاملوں میں کمی کے ساتھ معمول کی تجارتی سرگرمیوں کو بحال کرنے کا زور پکڑ رہا ہے مطالبہ، تجارتی ادارے اور کاروباری جموں کے تمام اضلاع میں تجارتی سرگرمیوں کی چاہتے ہیں فوری بحالی، جموں ڈویژن میں تاجروں کو 5000 کروڑ روپے کا نقصان۔ وون پامپور کے پہاڑی علاقوں میں بادل پھٹنے کی وجہ سے کئی بھیڑ بکریاں ہو گئی ہلاک، ایک چوپان کے مطابق شدید بارش کے ساتھ علاقے میں بادل پھٹنے کا یہ واقعہ آیا پیش۔ ضلع بانڈی پورہ کے حاجن علاقے کے خاندان نے پریس انکلیو سری نگر میں کیا احتجاج، احتجاجیوں نے ان کی بیٹی کو قتل کرنے کا لگایا الزام، کہا ان کی بیٹی کو گن جہانگیر سنبل میں اس کے سسرال میں زہر دے کر کیا گیا قتل۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں گنڈولا سروس سیاحوں کے لیے دوبارہ کر دی گئی ہے بحال، کووڈ ایس او پیز کے تحت سیاحوں کے گلمرگ آنے اور گنڈولا کی سواری کرنے کا سلسلہ شروع۔ شوپیاں کے رمبیارہ میں غیر قانونی کانکنی سرگرمیاں جاری، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں عدالتی احکامات پر عمل کرنے میں ہو گئی ہیں ناکام، قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے میوہ باغات اور اگلر فروٹ منڈی ممکنہ طور پر بنتے جا رہے ہیں سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقے۔ کپواڑہ ضلع میں دھان کی پنیری لگانے کا کام عروج پر، شرہامہ، لولاب سمیت درجنوں علاقوں میں سینکڑوں کنال زرعی اراضی کی آبپاشی کے حوالے سے مشکلات، ان علاقوں میں کھیت پڑے ہیں ویران۔
लोगों का कहना है कि आबपाशी के लिए पानी दस्तयाब नहीं हुआ तो सैकड़ों कनाल अराजी बंजर में हो जाएगी तब्दील। लोगों ने इल्जाम लगाया आबपाशी नहरों की साफ सफाई के लिए महकमे ने रकूमात निकाली मगर लोग खुद आबपाशी नहरों की सफाई का काम दे रहे हैं अंजाम। लोगों ने जिला इंतजामिया से मामले की जांच का किया मुतालबा। उन्होंने पानी जल्द दस्तयाब करने की मांग। महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा इस मामले को लिया जाए संजीदगी से। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने सार्फिन के लिए नामियाती सब्जियों वाली रेफ्रिजरेटिंग वैन का किया इफ्तिताह। नामियाती सब्जियों की फरोख्त मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में की गई शुरू। ताहम उस वक्त हैरानगी हुई जब डीसी ऑफिस के अहाते में सब्जियां पॉलिथीन में की जा रही थी फरोख्त। हुकूमत की जानिब से पॉलिथीन के इस्तेमाल पर आयद है सख्त पाबंदी। ऐसे में डीसी ऑफिस अहाते में की जा रही थी अहकामात की खिलाफ वर्जी। मुताल्लिका महकमे ने वाक़े पर पर्दा पोशी करने की भी की कोशिश। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स कोरोना वबा के चलते महकमे सेहत के शाना बशाना अपने फराइज बखूबी दे रहे हैं अंजाम। जिला पुलवामा में भी उन्होंने नुमाया काम किए हैं। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स इसके बावजूद बेहद कम उजरत और अपनी मुस्तकली को लेकर साल भर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर करती रही हैं एहतजाज। इनका इल्जाम हुकूमत ने इन्हें किया नजरअंदाज। कोविड के इन हालात में भी इन्हें माहाना मुशाहरे और दीगर सहूलियात से रखा जा रहा है महरूम। दरदपुरा लौलाब कुपवाड़ा के लोगों ने बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी को लेकर डीसी ऑफिस में किया एहतजाज। लोगों का कहना है इलाके में दहाइयों से सड़कों की खस्ताहाली और तिब्बी निजाम के फुकदान का मसला दरपेश, कोई नहीं पुरसाने हाल। अब तक किसी भी डिप्टी कमिश्नर ने इलाके का नहीं किया दौरा। लोगों ने एलजी से मुतालबा किया कि वो जाती तौर पर इस मामले में करे मुदाखलत। कोरोना की वजह से एसएमएचएस और जम्मू के दीगर अस्पतालों में 49 दिनों बाद ओपीडी खिदमात हो गई हैं बहाल। एसएमएचएस और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हर ओपीडी डिपार्टमेंट में सुबह 10 बजे से 2 बजे दिन तक सिर्फ 25 मरीजों का किया जाएगा मुआयना। लद्दाख को स्वच्छ भारत मिशन के पहले मरहले में ओपन डिफेक्शन फ्री दिया गया करार। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट ताहिर हुसैन जुबैदवी ने इसकी दी जानकारी। टीएफसी करगिल इनायत अली ने कहा आरडीडी लद्दाख गांव की सतह तक कचरे को साइंसी तौर पर अलग करने के लिए कर रहा है अहम किरदार अदा। ब्लॉक लेवल पर गार्बेज सेग्रीगेशन सेंटर भी किया जाएगा कायम। ताहिर हुसैन जुबैदवी ने लोगों से की दरख्वास्त कि वो महकमे की करे मदद। ताहिर हुसैन ने करगिल के हर ब्लॉक के लिए कचरा उठाने वाली गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी थी। एग्जीक्यूटिव काउंसलर वर्क्स लद्दाख आगा सैयद अब्बास ने मुख्तलिफ महकमों के उहदेदारों के साथ की मीटिंग। अब्बास ने मुख्तलिफ महकमों के काम पर इत्मीनान का किया इजहार। उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए मजीद तंदही और जोश से काम लेने पर दिया जोर। 1971 की जंग में शामिल फौजी भी तकरीब में हुए शामिल। साबिक फौजियों वीर नारीज को तहनीत की गई पेश। इस मौके पर फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान के अलावा स्कूली तलबा भी रहे मौजूद। जिला पुलवामा के राजपुरा ब्लॉक में 45 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद को कोविड वैक्सीन देने का अमल 100% हो गया है मुकम्मल। जिले में शहरी इलाकों के मुकाबले देही इलाकों में वैक्सीन लगाने की शरह ज्यादा। राजपुरा में ज्यादातर आबादी देही और पहाड़ी इलाकों में है आबाद। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने कहा बाकी ब्लॉकों में इंतजामिया की जानिब से वैक्सीनेशन अमल में तेजी लाने के लिए खुसूसी मुहिम कर दी गई है शुरू। जिला डोडा में 18 से 44 बरस तक के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज। इस सिलसिले में 6 मराकज को किया गया चालू। कई दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों ने इंतजामिया की जानिब से माकूल इंतजाम न करने की शिकायत की। भदरवा में 18 से 44 बरस तक लोगों की वैक्सीनेशन हो गई है शुरू। पहले दिन के लिए 250 लोगों ने कराई थी रजिस्ट्रेशन। एडीसी भदरवा राकेश कुमार ने बीएमओ डॉक्टर शकील अहमद के हमरा कम्युनिटी हॉल कोटली में मुहिम का किया इफ्तिताह। लोगों ने मुहिम शुरू करने के लिए हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। गंदू में बीएमओ डॉक्टर शफकत ने कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का किया इफ्तिताह। यहां भी 18 से 44 बरस तक लोगों के लिए 250 स्लॉट्स रखे गए थे मुहैया। सिर्फ 12 लोगों ने कराया था रजिस्ट्रेशन।
पुंछ के गुलपुर, अजवट और खाड़ी इलाके के किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए नहर की मरम्मत का काम खुद दे रहे हैं अंजाम। किसानों का कहना, महकमा आबपाशी से नुमाइंदगी के बावजूद नहीं किया गया कोई काम। अब मजबूरी में वो खुद ही आपस में मिलकर अंजाम दे रहे हैं ये काम। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टनमर्ग ने बीएमओ टनमर्ग सबावानी की सरबराही में मोबाइल वैन सर्विस के जरिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम कर दी है शुरू। टनमर्ग मार्केट से दीगर बाजारों तक ये खास मुहिम की गई शुरू। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन गाडूरा गांधरबल में बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। महकमा यूथ सर्विसेज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज डॉक्टर सलीमुर रहमान के हमरा इसका किया इफ्तिताह। माता खीर भवानी मंदिर टुकर कुपवाड़ा में 17 और 18 जून को खीर भवानी मेले का हो रहा है इत्माम। इंतजामिया ने तमाम तर तैयारियां कर ली मुकम्मल। डीसी और एडीसी ने मंदिर का किया दौरा, एक खास मीटिंग की मुनाकिद की। और इस वक्त की अहम खबर दे दें, श्रीनगर के नौगाम में एनकाउंटर, एक मिलिटेंट हलाक। मिलिटेंट की शिनाख्त अजीज के तौर पर की गई। अजीज का ताल्लुक शोपियां जिले से। नाज़रीन, चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह का। समीउल्लाह, आपसे जानना चाहेंगे इस एनकाउंटर के ताल्लुक से क्या कुछ तफसीलात? देखिए हिना, गुज़श्ता शब को ही सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दका इतला मिली थी जो वागोरा इलाका है बडगाम जिले का, तो वहाँ पे मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर थी मेवा बागात में। तो जब वहाँ पे कॉर्डन किया गया तो जब वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे तो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ वहाँ पे और उसमें एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है। उसकी शिनाख्त जो है उजैर अशरफ डार के नाम से हुई है और वो शुपियां जिले से ताल्लुक रखता है। और जो मिलिटेंट आउटफिट ग्रुप है एलएटी लश्कर तोयबा, उसके साथ उसकी जो है एफिलिएशन बताई जा रही है। फिलहाल जो है वहां से जो गुज़श्ता शब सर्च ऑपरेशन चला था वो फिर सुबह के औकात में वहां पे खत्म हुआ। फिलहाल एक मिलिटेंट को वहां पे हलाक किया गया है और एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर है इस एनकाउंटर में। समीला, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी रहता है। अभी क्या कुछ सूरत हाल? देखिए, जो गुज़श्ता शब वहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था फायरिंग के बाद, जो सुबह के औकात में जो वहाँ पे एनकाउंटर है वो खत्म हुआ था और वहाँ से जो है सर्च ऑपरेशन भी जो खत्म किया था सुबह की औकात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने। जी समीउल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और अहम खबरों पर नजर डालेंगे। गाजियाबाद में बुजुर्ग से मारपीट और दाढ़ी काटने का मामला। गाजियाबाद पुलिस ने 9 अफराद पर की एफआईआर दर्ज। मामले को गलत रुख देने और अफवाह फैलाने का इल्जाम। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। आज की कीमतों में इजाफे के साथ दोनों ईंधन महंगाई की नई बुलंदियों पर। पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 13 पैसे महंगा। बिहार से खबर, जहां आज से अनलॉक 2 की शुरुआत। 22 जून तक बिहार में जारी रहेंगे नाइट कर्फ्यू। शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। शाम 8 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का निफाज। एलजेपी पार्लिमानी पार्टी के सदर के ओहदे पर चिराग पासवान का दावा। चिराग पासवान ने पशुपति पारस समेत 5 अरकान पार्लियामेंट को पार्टी से निकाला। चिराग पासवान को कानून की जानकारी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मुंबई में पिछले साल फर्जी दस्तावेजात से हुए घोटाले में 76 अफराद थे मौजूद इल्जाम। ईडी ने विवेकानंद शंकर पटेल को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में कोरोना के पेश नजर तैयारियां। आज सीएम की सदारत में होना है अहम मीटिंग। तीसरी लहर से नबरदाश्त होने और तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव रेट घटाने के लिए नकली जांच करने का मामला। कांग्रेस ने शिवराज सिंह हुकूमत पर लगाया इल्जाम। रियासत में कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटाने के लिए नकली जांच करने का इल्जाम। कांग्रेस तर्जुमान भूपेंद्र गुप्ता का बयान। एक ही मोबाइल नंबर पर पॉजिटिविटी रेट घटाने के लिए 40 लोगों को किया गया रजिस्टर्ड। 40 मोबाइल नंबरों पर 681 लोगों को की गई नकली जांच।
कांग्रेस ने एमपी हुकूमत पर नकली जांच करके अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने का लगाया इल्जाम। कांग्रेस ने हुकूमत से पूरे मामले की जांच का किया मुतालबा। एमपी में अनलॉक की नई गाइडलाइंस भी की गई जारी। अनलॉक की नई गाइडलाइन में आज से शॉपिंग मॉल और खेल स्टेडियम को खोलने की दी गई इजाजत। एमपी में आज से रेस्टोरेंट, जिम और क्लब को भी 50% की सलाहियत के साथ खोलने की दी गई इजाजत। सिनेमा हॉल्स और स्विमिंग पूल बदस्तूर बंद। नाइट कर्फ्यू के साथ इतवार के लॉकडाउन का नफाज जारी। मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटर्स को कुछ राहत। टैक्स अदा करने की मुद्दत 3 महीने तक बढ़ाई गई। कोरोना के दौर में बस खदमात मुकम्मल तौर पर बंद थी। बस ऑपरेटर टैक्स माफ करने का मुतालबा कर रहे हैं। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट गोविंद सिंह राजपूत का बयान। टैक्स अदा करने की मुद्दत बढ़ाई गई 3 महीने के लिए। नेपाल की तराई में बारिश के बाद गंडक नदी की सतह आब में जबरदस्त इजाफा। गंडक नदी के कई फाटक खुलने की वजह से गांव में दाखिल हुआ पानी। इंतजामिया अलर्ट पर। बागमती नदी के कहर से कटाव शुरू। इंतजामिया पर नजरअंदाज करने का इल्जाम। पीडब्ल्यूडी की सड़क खतरे में। दिल्ली फसादात केस में यूएपीए लगाए गए मुलजमीन नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा और देवांगना कालिता को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में किया है चैलेंज। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर गौर करने की है अपील। केरल के सहाफी सिद्दीक कप्पन को मिली राहत। मथुरा की अदालत ने अमन में रखना डालने के इल्जाम को किया खारिज। सिद्दीक कप्पन गुज़िश्ता 8 माह से हैं जेल में बंद। बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान मुतनाज़ तकरीर का मामला। मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोलकाता पुलिस कर रही है पूछताछ। हिंदुस्तान में ट्विटर ने महफूज प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया। ट्विटर मामले पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का बयान। ट्विटर ने नए ज़ाब्तों पर अमल नहीं किया। 18 जून को ट्विटर मामले पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग पैनल की होनी है मीटिंग। ट्विटर के ओहदेदार भी मीटिंग में कर सकते हैं शिरकत। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम के खिलाफ भी एफआईआर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फिरक़ेवाराना मुनाफरत को फरोग़ देने वाले पोस्ट को लेकर एफआईआर की। इंस्टाग्राम के ओहदेदारों से अब होगी पूछताछ। आसियान के वज़राए दिफा की मीटिंग से राजनाथ सिंह का खिताब। दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा। हिंदुस्तान दहशतगर्दों की फंडिंग की रोकथाम का पाबंद। मुल्क में तारीखी इमारतें आवाम के लिए आज से दी गई खोल। कोरोना की वजह से तारीखी इमारतों को बंद कर दिया गया था। अब आवाम ताजमहल साथ ही दीगर तारीखी इमारतों का कर सकते हैं दीदार। हैदराबाद में चार मीनार और किला गोलकुंडा भी लोगों के लिए खोला गया। एसओपीज का रखना होगा ख्याल। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। दिल्ली हुकूमत 5000 हेल्थ असिस्टेंट करेगी तैयार। कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हेल्थ असिस्टेंट का ये होगा तकर्रुर। ये अफराद डॉक्टर्स और नर्स के मददगार के तौर पर करेंगे काम। इन्हें नर्सिंग, पैरामेडिकल्स, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत दी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 जून से की जा सकती है दाखिल। सागर राणा पहलवान के कत्ल का मामला। दिल्ली पुलिस ने जूडो के कोच सुभाष को किया गिरफ्तार। इस मामले में पहलवान सुशील कुमार पहले ही अदालती तहवील में। सुशील कुमार की अदालती तहवील 25 जून तक बढ़ाई गई है। गुजरात के आनंद में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत। तारापुर बेगुदराहा हाईवे पर हुआ हादसा। ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर। कार में सवार 10 अफराद हलाक। सऊदी अरब की जानिब से हज 2021 की गाइडलाइंस जारी होने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सभी हज दरख्वास्तों को कर दिया रद्द। इस साल हिंदुस्तान से इस मुकद्दस सफर पर नहीं जा सकेगा कोई। इस बार सिर्फ दरख्वास्त फॉर्म ही किए गए थे दाखिल। सऊदी हुकूमत के मुताबिक कोरोना के चलते इस साल सिर्फ 60,000 आज़मीन को ही फरीज़ा हज की अदायगी की दी जाएगी इजाज़त। ये सभी लोग होंगे मकामी। सिर्फ 18 से 65 बरस के आज़मीन ही हज की सादत हासिल कर सकेंगे। कौमी अक़लियती कमीशन जल्दी मुकम्मल तौर पर हो जाएगा डिजिटल। सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के बाद अब कमीशन ला रहा है अपना मोबाइल ऐप। कमीशन के नायब चेयरमैन का कहना, इस ऐप के जरिए हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से दर्ज करवा सकते हैं अपनी शिकायतें।
दिल्ली में दरगाह अजमेर कमेटी के इंतखाबात का इनेकाद, इसमें अमीन पठान को मुत्तफ़िक़ा तौर पर दरगाह अजमेर कमेटी का चेयरमैन किया गया मुंतखब, मुनव्वर खान को दरगाह अजमेर कमेटी का नायब सदर किया गया मुकर्रर। तमाम 9 मेंबरान इस चुनाव में शामिल हुए और मुत्तफ़िक़ा तौर पर अमीन पठान और मुनव्वर खान का किया गया इंतखाब। अमीन पठान ने इस मौके पर कहा, पहले से मजीद बेहतर काम करने की करेंगे कोशिश, तरक्याती कामों को मजीद दी जाएगी वुसअत, दरगाह अस्पताल का काम भी किया जाएगा मुकम्मल। नांदेड़ असलहा जब्ती मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए नांदेड़ असलहा जब्ती मामला मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इरफान को बाइज्जत किया बरी। वहीं मोहम्मद सादिक, मुजम्मिल और मोहम्मद अकरम को 10-10 साल की सुनाई गई सजा। सभी मुलजिमीन पिछले 9 साल से जेल में कैद। मुलजिमीन के लिए जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से अदालत में की जा रही थी पैरवी। 3 मुलजिमीन को हुई सजा के खिलाफ मुंबई की स्पेशल अदालत के फैसले को जमीयतुल उलमा हाई कोर्ट में करेगी चैलेंज। सऊदी अरब की जानिब से हिंदुस्तान को ऑक्सीजन की फराहमी का सिलसिला जारी। सऊदी अरेबिया की जानिब से 14 ऑक्सीजन टैंक पहुंचे मुंबई। सऊदी सिफारत खाना मुंबई के अफसरान ने इन ऑक्सीजन टैंक्स को किया रिसीव। महाराष्ट्र में बाज़ाब्ता तालीमी सिलसिला हो चुका है शुरू। रियासती हुकूमत के जारी करदा एलामिया के मुताबिक शहरी हदूद में वाक़ई स्कूलों के असातिज़ा को 100% हाजिरी लाजमी, जबकि देही इलाकों के स्कूलों में 50% असातिज़ा रहेंगे हाजिर। स्कूल के जिम्मेदारों को मास्क, सैनिटाइजर और जिस्मानी फासले का रखना होगा खास ख्याल। तालीम दी जाएगी ऑनलाइन। स्कूल के जिम्मेदारों का कहना, हुकूमत की हिदायत के मुताबिक बाज़ाब्ता ऑनलाइन तालीम का सिलसिला किया गया शुरू। पहला दिन होने की वजह से तलबा की ऑनलाइन हाजिरी बेहद कम। कानपुर सिविल लाइन इलाके के लोग पानी की किल्लत से परेशान। लोगों को जो पानी फराहम किया जाता है वो पीने के काबिल नहीं। गंदे पानी के सबब कई तरह की बीमारियों को होने का खतरा। मेरठ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर का बयान, वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह रोकने का हुक्म। एडिशनल कमिश्नर के फरमान पर मुलाजमीन की सख्त नाराजगी। कानपुर कांग्रेस कमेटी के जरिए एक प्रोग्राम का इनेकाद। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के उन लीडरों और कारकुनों को खराज अकीदत पेश किया गया जो कि कोरोना के इस दौर में दुनिया से हो गए रुखसत। प्रतापगढ़ में एबीपी न्यूज की रिपोर्टर सुलभ श्रीवास्तव के कत्ल के खिलाफ इलाहाबाद में सहाफियों ने किया खामोश एहतजाजी मुजाहरा। शहर के मरकजी इलाके सिविल लाइन्स में होने वाले मुजाहरे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखने वाले बेशतर सहाफियों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में हुई एलजीपी कौमी वर्किंग कमेटी की मीटिंग। सूरज भान सिंह को कारगुजार सदर किया गया मुंतखब। 5 दिनों में होगा नए सदर का इंतखाब। चिराग पासवान को कौमी सदर के ओहदे से हटाया गया। पटना में शराब कारोबारियों का पुलिस की टीम पर हमला। पुरसा बाजार में पुलिस एहलकारों की पिटाई, राइफल भी छीनी गई। बाघा में मुसलसल हो रही बारिश कई लोगों के लिए लेकर आई मुसीबत। मूसलाधार बारिश के बाद गांव में घुस आया पानी, आमदरफ्त मुतासिर। मुजफ्फरपुर के बरहमपुरा पुलिस स्टेशन में एक शख्स इंसाफ की मांग को लेकर अपने 2 साल के मुर्दा बच्चे के साथ पहुंचा। इल्जाम है कि इलाज में लापरवाही से इस 2 साल के मासूम की हुई है मौत। पुलिस ने मुनासिब कार्रवाई का दिलाया यकीन। मुल्क भर में कोरोना के नए मामलों में आ रही है बतदरीज कमी। पिछले 24 घंटों के दौरान 62,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। 2,542 अफराद की हुई मौत। 1,07,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब। कुछ खबरें तेलंगाना से भी। हैदराबाद में नीलूफर अस्पताल में मुलाजमीन का एहतजाज। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के मुलाजमीन का एहतजाज। जियो नंबर 7 की बर्खास्तगी का मामला। मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज में लाई जाएगी मजीद शिद्दत, भी इसका इंतबाह भी दिया इन्होंने। अदूनी करनूल में ईदगाह कमेटी के दफ्तर में इजलास मुनक्किद। ईदगाह की तामीर का हुकूमत से मुतालबा। जगन हुकूमत अक़लियती दोस्त होने का सिर्फ करती है दावा। मकामी रुकन असेंबली भी मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में तहरीरी मुकाबले मुनक्किद। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद। विजयवाड़ा में जारी किया गया पोस्टर। जन्मदिन के मौके पर कई फलाही प्रोग्रामों के इनेकाद का भी मंसूबा। वक्फ बोर्ड की चेयरमैन का ताल्लुक सुन्नी जमात से हो। अहले सुन्नतुल जमात ने वज़ीर आला से की अपील। सुन्नी जमात ही औक़ाफ़ अराज़ियात की हकीकी हक़दार। एपी के
पिद्दूर में MPJ की जानिब से दोपहर के खाने का इंतजाम, सरकारी अस्पताल के बाहर खाने का इंतजाम, मरीजों के रिश्तेदारों और दीगर अफराद को तकसीम किया गया खाना। करनूल में जरूरतमंदों में CM रिलीफ फंड्स की तकसीम, रुकन असम्बली हफीज खान के हाथों चेक किए गए तकसीम। हफीज खान ने अपनी जानिब से दिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच लड़ाई, 24 घंटों के दौरान कम से कम 20 शहरी हलाक। अफगानिस्तान के 3 अजला पर तालिबान का कब्जा, तुलू न्यूज के हवाले से खबर। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान फिर से जंग की चिंगारी भड़की, इसराइल फिजाइया ने गजा पट्टी पर किया हमला, हमास के कई ठिकानों को बनाया निशाना। इसराइल के मुताबिक गजा की जानिब से पहले आग लगाने वाले गुब्बारे से किया गया था हमला, जिससे इसराइल में कई जगह आतिशज़दगी के मामले आए सामने। जवाबी हमले में इसराइल ने अपना फिजाई हमला अलसुबह गजा पट्टी पर किया। कुछ दिन कबल ही 21 मई को इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान हुई थी जंग बंदी, लेकिन इसराइल ने नहीं रखा पासो लिहाज। एक मरतबा फिर से फिलिस्तीन को जंग की आग में झोंकने की कोशिश कर दी तेज। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए, वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी, अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना।